آج مسلمانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، مسلمان اپنی زندگی کو کس طریقے سے پیش کرنے پر آمادہ ہے۔ آج گھر کے بڑے تو محفلوں میں شرکت نہیں کرتے، باپ آ کر محفل میلاد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے معصوم بچے کو بھیج دیتا ہے اور معصوم بچے بھی محفلوں میں آتے ہیں۔ جب باپ نے کبھی طریقہ سکھایا نہیں، جب بھائی نے کبھی طریقہ سکھایا نہیں، جب چاچا نے کبھی بتایا نہیں کہ میلاد کی محفل میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں کیسے بیٹھ کر سنا جاتا ہے، تو ان بچوں کو سلیقہ کہاں سے ملے گا، ان بچوں کو طریقہ کہاں سے ملے گا۔ مسلمان اگر اپنی آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہے، نبی کی شریعت کو عام کرنا چاہتا ہے، تو اے مسلمانوں اپنے آپ میں پہلے تم محفلوں میں بیٹھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی محفلوں میں لا کر بیٹھانے کی کوشش کرو۔ جب تم سلیقے اور طریقے کے ساتھ محفلوں میں بیٹھو گے، تمہارے بچے تمہاری طریقوں کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ رب العزت جب نبی کے میلاد میں یہ بچے بیٹھیں گے تو احترام کی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ کی رحمتیں ان ایسی محفلوں میں نازل ہوں گی، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوگا، ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ لیکن حالات اس طریقے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ آج ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کون سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری اٹھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر غوث اعظم کو مسلمان امرنما کی زمین سے دل سے یاد کر لینا تو غوث اعظم یہاں بھی مدد کے لیے آ جائے، یعنی بھارت ہی نہیں دنیا کے کسی بھی خطے سے غوث اعظم کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو سرکار غوث اعظم اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اور آپ تو مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے، مگر اگر کوئی غیر مسلم بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر لے، غوث اعظم کے نام سے نیاز و فاتحہ دلا دے تو غوث اعظم کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ غیر مسلم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ اسے کلمے کی شہادت نصیب فرماتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، جب غیر مسلم غوث اعظم سے فیضان سے مالا مال ہو سکتا ہے تو ہم تو امت محمدیہ میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، اگر ہم بھی غوث اعظم سے محبت کریں گے تو غوث اعظم کا فیضان ہم آپ پر جاری و ساری ہوگا، ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قرص نظامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ملاحظہ کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی غیر مسلم محبت کر لیتا ہے نا تو غوث اعظم اس کی بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ اسی بھارت کی زمین کا ایک واقعہ نگاہوں کے سامنے سے گزرا کہ اسی بھارت کی زمین پر ایک غیر مسلم ہے، مسلمان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتا ہے، غوث اعظم کے نام سے 11ویں شریف کے موقع پر فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب اس کا انتقال ہوا نا، انتقال ہونے کے بعد جب ان کے ریت رواج کے غیر مسلموں نے سوچا کہ اسے لے جا کر چتا پر لٹایا جائے، اسے آگ کے حوالے کیا جائے۔ حقیقت میں مسلمانوں، اس شخص کو جب چتا پر لٹایا گیا آگ لگائی جا رہی ہے مگر آگ لگنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ میں وہ جلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کے دھرم کے گروہوں نے دیکھا آخر یہ کیوں نہیں جل رہا ہے، اس کو آگ بھی دی جا رہی ہے، آگ لگنے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، وہ لوگ پریشان ہو گئے، جب پریشان ہو گئے تو اپنے آپ میں بہت سی ترکیب لگائے مگر وہ آگ سے جلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے لے جا کر ایک دریا میں اس کو اپنے آپ میں پھینک دیتے ہیں کہ اسی دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ حقیقت میں مسلمانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے کتب کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتب سن، اے اللہ کا ولی سن، آج اس شخص کو جس کا انتقال ہوا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ جب مرنے کے قریب پہنچا تو اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اے مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم غوث اعظم سے محبت کرے تو اسے دنیا کی آگ نہیں
आग हमें नहीं जलाएगी, हमें रब तबारक का बताला जन्नत में आला मकाम अता करेगा। और जानते हो गौसे आजम को अगर सच्चे दिल से कोई याद करता है ना तो गौसे आजम उसकी मदद के लिए आया करते हैं। इसी भारत की जमीन की वो तारीख उठाओ, रणजीत सिंह की दौरे हुकूमत का वाकया आपकी निगाहों के सामने रखना चाहिए हो। रणजीत सिंह की जब हुकूमत के वाकये को उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुसलमानों इसी मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर जब रणजीत सिंह राजा यहाँ पर हुकूमत कर रहा था तो उस वक्त जानते हो एक खातून थी जो गैर मुस्लिमा थी, बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, अपनी जिंदगी को बसर कर रही थी। उसके गांव में मुसलमानों की भी बस्ती थी, उसके साथ मुसलमान भी जिंदगी बसर करते थे। जानते हो वो अपने यहाँ लोगों की सुना करती थी बड़े पीर का नाम। एक मुसलमानों एक दिन वही उसी गांव के अंदर एक बदअकीदा मुसलमान भी रहता था जो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत सीने में नहीं रखता था। हकीकत में मुसलमानों उस खातून का दीवाना हो जाता है, उस लड़की का मस्ताना हो जाता है, उसके हुस्न और जमाल का दीवाना हो जाता है। अब उसकी इज्जतों के साथ खेलना चाहिए है, उसके वकार को मजरू करना चाहिए है, उसके जिस्म को नोचना चाहिए है, मगर वक्त नहीं पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा भी उसके निगाहों के सामने से गुजरता है कि वो खातून जो अपने आप में एक शादीशुदा खातून थी अपने शौहर के साथ कहीं पर सफर करने के लिए निकलती है। जैसे ही अपने सरताज के साथ सफर करने के लिए निकली, इस बदअकीदा मुसलमान ने सोचा आज मौका अच्छा है, इसलिए कि उस दौर में सवारी का इंतजाम नहीं हुआ करता था, लोग पैदल सफर किया करते थे। उसके बाद सवारी का इंतजाम था कि सवारी लेकर पहुंचा और कहने लगा कि मेरे भाई तुम इस सवारी पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मकाम पर छोड़ दूंगा। वो खातून कहती है कि इसका इरादा ठीक नहीं है, आप इसकी सवारी पर मत बैठिएगा। मगर ये बदअकीदा बार बार कहने लगा कि मेरी सवारी पर बैठ जाओ, मैं तुझे तुम्हारे साथ धोखा न दूंगा। तो हकीकत में उस खातून ने कहा था कि एक शर्त पर हम तुम्हारे सवारी पर बैठेंगे, तुम पहले ये वादा करो कि तुम हमारे साथ कोई धोखा नहीं करोगे, हमारे वकार को मजबूर करने की कोशिश नहीं करोगे। तो उस बदअकीदा मुसलमान ने कहा था हाँ हाँ तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया जाएगा। तो खातून ने कहा था सुन, मैंने सुना है कि तुम लोग बड़े पीर की दुहाई देते हो और जो बड़े पीर को याद करता है बड़े पीर उनकी मदद करने के लिए आते हैं। तुम यही कह दो कि अगर मैं धोखा दूंगा तो गौसे आजम इसका मामला देखेंगे। उसने सोचा कि गौसे आजम कहां बगदाद से मदद के लिए आ रहे हैं, गौसे आजम कहां बगदाद से भारत की जमीन पर आ रहे हैं। उसने कहा ठीक है, अगर मैं कुछ करूंगा तो गौसे आजम इस मामलात को देखेंगे। अब मुसलमानों सफर का आगाज किया जाता है। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि ये शख्स जो बदअकीदा था वो अपने म्यान से तलवार को निकालता है, उस गैर मुस्लिम शख्स को ऐसा पार करता है कि उसके जिस्म को दो टुकड़े कर देता है। हकीकत में मुसलमानों खातून अपने आप में तड़प जाती है, अपने आप में किसी से लेने पर आमादा हो जाती है। वो दिल में इरादा कर लेती है अब मेरी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा, मगर दिल में सोचने लगती है कि गौसे आजम की दुहाई मैंने लगाई है, जरूर बड़े पीर बगदाद से मदद करने के लिए आएंगे। अब मुड़ मुड़ कर पीछे देखने लगी और सफर का आगाज हो रहा है। उस बदअकीदा मुसलमान ने कहा था खातून तू पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रही है, तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो उस खातून ने कहा था सुन, मैंने वादा जो लिया है किसी ऐसे वैसे का नहीं बल्कि शहंशाह बगदाद का वादा लिया है, बड़े पीर का वादा लिया है, बड़े पीर हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। ए मुसलमानों के बदअकीदा कहता है तो अब उस ख्याल में डूबी हुई है, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई बगदाद से चलकर भारत की जमीन पर आए, कोई इंतकाल कर जाए मजार से निकलकर भारत की जमीन पर मदद करने के लिए आए। उस खातून ने कहा था मेरा अकीदा है, इसलिए कि जब मैं अपनी जिंदगी को गांव में बसर करती थी तो मेरी यहाँ की औरतें कहती थी कि जो गौसे आजम से मदद को पुकारता है गौसे आजम उनकी इमदाद के लिए पहुंचते हैं, जरूर गौसे आजम आएंगे। ऐ मुसलमानों, ये अभी बकवास कर ही रहा था कि इतने में क्या देखते हैं कि दो नकाब पोश आते हैं, अपने आप में आने के बाद उस बदअकीदा को अपने आप में दो टुकड़े करके जमीन पर गिराते हैं, उस खातून को साथ में लेते हैं, उसके सरदार को जहां पर कत्ल किया गया था वहां ले जाकर उसके जिस्म को आपस में मिलाकर कहा जाता है कुम बिइज़्निल्लाह। हकीकत में मुसलमानों को अपने आप में फिर जिंदा हो जाता है। ये दोनों उसी सवारी को लेकर अपने घर को आते हैं।
जैसे ही घर को आए वह उसके बदअकीदा के घर वालों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि हमारे घर वाले को इन्हीं लोगों ने कत्ल किया है, इसलिए कि सवारी इन लोगों के पास है। उन लोगों ने कहा था नहीं नहीं हमने उसका कत्ल नहीं किया है। रंजीत सिंह की अदालत लगाई जाती है। भरी अदालत के अंदर ए मुसलमानों, उस दौरे जमाना के अंदर मुसलमान और हिंदू मिलकर रंजीत सिंह की अदालत में इकट्ठा होते हैं। रंजीत सिंह की अदालत में उस शौहर और बीवी को बुलाकर पूछा जाता है कि तुम बताओ कि उस मुसलमान का कत्ल किसने किया। तो उस खातून ने कहा था कि उस बदअकीदा मुसलमान का कत्ल किसने किया मुझे मालूम नहीं है, मगर जो नकाब पोश आए थे उन लोगों ने उसका कत्ल किया और मेरे शौहर को अपने आप में जिंदा किया, मैं उसके साथ आई हूँ। तो ए मुसलमानों, रंजीत सिंह ने पूछा था कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है। तो उस खातून ने कहा था सबूत तो कोई नहीं है, गवाह तो कोई नहीं है, मगर जो दो नकाब पोश आए थे मैं उन लोगों का चेहरा नहीं देखी थी, मगर एक खुतबे वक्त जो इस इलाके के अंदर चक्कर लगाया करते हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, उस मजजूबे कामिल की आवाज वो फला के आवाज से मिल रहे थे। उस मजजूब को उसी महफिल में बुलाया गया। मजजूबे कामिल से सवाल किया गया कि ये खातून कह रही है कि उस कत्ल में तुम भी सब शरीक थे, तुम भी नकाब पोश बनकर आए थे। तो उस मजजूबे कामिल ने कहा था कि ए रंजीत सिंह सुन, गौसे आजम को इसने पुकारा था और गौसे आजम को जो भी दिल से याद किया करता है गौसे आजम उसकी मदद के लिए आया है ना। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठे हो तो एहतराम के साथ बैठो, इसलिए कि गौसे आजम का जो दीवाना होता है गौसे आजम के नाम पर अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। और ए मुसलमानों, ये प्रोग्राम जहां पर सरकार गौसे आजम के नाम से मंसूब किया गया है, वही गौसे आजम के गुलाम जिनको दुनिया हुजूर ताजुल अस्फिया हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला के नाम से जानती और पहचानती है, ए मुसलमानों उसी नाम से भी मंसूब किया गया है। हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला की जिंदगी के हालात को हमने और आपने बहुत अच्छे तरीके से मुलाहिजा किया है। हजरत अल्लामा अय्यूब साहब क़िबला रज़वी ने उनकी खिदमत को भी अंजाम दिया है। हकीकत में मुसलमानों, जहां अमरोहा के लोगों के लिए बड़ी आन बान शान की बात है कि हमने ताजुल अस्फिया की खिदमत किया है, हमने हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला की जिंदगी के हालात को देखा है, उनके चलने के अंदाज को, उसके बैठने के अंदाज को, उनके खाना खाने के अंदाज को हमने बखूबी अपनी निगाहों से मुलाहिजा किया है। हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन पर अल्लाह की रहमतें किस कदर नाजिल हुआ करती थी, अल्लाह की बरकतें किस कदर नाजिल हुआ करती थी। हुजूर खतीबुल बराहीन के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद वाला किया था। यही दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमरोहा की जमीन है, जहां हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला दरसे तदरीस के काम को अंजाम दिया करते थे। उनके तलामजा, उनके तलबा ए मुसलमानों पूरी दुनिया में आदीन और सुन्नियत के काम को अंजाम दे रहे हैं। हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन का मकाम मर्तबा पूरी दुनिया में इतना ऊंचा अल्लाह ने दिया था कि ए मुसलमानों आज हालात का जायजा लो। आपने बहुत से पीर को देखा होगा, इसी गांव में भी पीरों की आमद होती है। हकीकत में बहुत से ऐसे पीर आते हैं जिनके चलने के अंदाज को देखकर लोग ऐब निकाला करते हैं, जिनके बैठने के अंदाज को लोग उंगलियां उठाया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों इसी दुनिया के अंदर, इसी समाज के अंदर हमने बहुत से पीर को देखा है कि जो आते हैं हकीकत में अपने मुरीदों पर सिर्फ और सिर्फ उनकी निगाहें क्या होती है कि उनकी निगाहें उनके जेब पर हुआ करती है। मुरीद कितना नजराना देते पीर उतना खुश हो जाता है, मगर हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता किया था कि कभी पैसे की लालच नहीं किया करते थे, कभी दौलत की लालच नहीं किया करते थे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें ये मकाम और मर्तबा अता किया। और हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला का मकाम तमाम पीरों में इस तरीके से अफजल आला हुआ कि ए मुसलमान आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन औरतों से बहुत पर्दा किया करते थे, खातून से बहुत पर्दा किया करते थे। अगर कोई खातून, कोई औरत उनके पास आती थी ना तो अपने आप में निगाहों को नीचे कर लिया करते थे। आपने भी यही मुलाहिजा किया होगा दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम के अंदर जब हुजूर खतीबुल बराहीन कहीं से सफर करके आते थे, दर्जे 4 और 5 और 3 की जो
बच्चियां होती थी, अगर खतीब इब्राहिम की निगाहों के सामने पड़ जाती थी ना तो खतीब इब्राहिम रास्ते को बदल दिया करते थे, या तो निगाहों को नीचे कर लिया करते थे। ये खतीब इब्राहिम पर अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा अदा किया था। और गोवा की जमीन का वाकया मैंने पढ़ा है कि एक घर में खतीब इब्राहिम जब अपने आप में पहुंचे ना तो बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा अमीर था। वो जियारत करने के लिए अपनी बीवी और बच्चियों को बुलाया, कहने लगा अपने पीर को देख लो, इसलिए कि कल मैदान महशर में कोई तुम्हें आसानी हो इनको पहचानने के लिए। हुजूर खतीब इब्राहिम सख्ती के साथ मना करते हैं, कहते हैं कि अगर इन लोगों को देखना ही होगा तो अल्लाह इन पर रहमतों की बरसात जरूर अता करेगा, इनको सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। हुजूर खतीब इब्राहिम ने किस तरीके से शरीयत मुस्तफा पर अमल किया है, कुरान की तालीम पर किस तरीके से अमल किया है। ए मुसलमानों, हुजूर खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन को अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा अता किया था कि दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम अमरोबा के अंदर जब कहीं सफर से आते थे ना तो छोटे छोटे जो बच्चे, जो मासूम बच्चे थे, जिनको ठीक तरीके से चलने का तरीका पता ना था, खाने का तरीका पता ना था, ठीक तरीके से अपने बाप के मकाम को नहीं समझते थे, अपनी माँ के मर्तबे को नहीं समझते थे, उन बच्चों के दिल में भी रब्बे कायनात ने खतीब इब्राहिम की ऐसी मोहब्बत अता किया था कि जब खतीब इब्राहिम दारुल उलूम में कदम रखते थे तो मासूम बच्चे अगर सर पे टोपी भी लगाए हो फिर भी अपने हाथों से सर को ढांक लिया करते थे। यानी मुसलमानों के एहतराम करते थे कि आने वाला कोई आम नहीं है, ये अल्लाह का वली आ रहा है, ये अल्लाह का नेक बंदा आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू तआला ने दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया है। और जो खतीब इब्राहिम से मोहब्बत करेगा दावे के साथ कहता है रब तबारक व तआला उस पर भी रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हजरत मोहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि हुजूर खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू तआला के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, उनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। हकीकत में आपने उनकी जिंदगी को देखा है कि ए मुसलमानों, पीर की जो क्वालिटी होती है ना, सारी अदाएं हुजूर खतीब इब्राहिम में अल्लाह ने महफूज अदा किया। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो करामत हुई ना, उन करामतों के अक्स को हमने खतीब इब्राहिम की जिंदगी के अंदर देखा है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलूं। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है, जामा मस्जिद बगदाद की है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही खिताब करने के लिए खड़े हुए ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमतों की बरसात हो जाती है, झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। एक मुसलमानों जो मजमा लगा था, मजमा मुंतशिर होने लगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए रब तबारक व तआला, मैं तेरे जिक्र के लिए लोगों को इकट्ठा करता हूँ और तू है कि लोगों को मुंतशिर फरमा रहा है। रब्बे कायनात, तू इस बारिश को रोक दे। ए मुसलमानों, गौसे आजम ने रब की बारगाह में जैसे ही इतनी दुआ की, रब तबारक व तआला ने गौसे आजम की दुआ को कबूल फरमाकर जामा मस्जिद के इर्द गिर्द बारिश नाजिल करके और जामा मस्जिद के पास ए मुसलमानों बारिश को रोककर दुनिया के लोगों को मैसेज और पैगाम दिया था। है दुनिया के लोगों, मेरे नेक बंदे जैसा कहते हैं ना वैसा मैं करके दिखा देता हूँ। ये तो सरकार गौसे आजम की करामतों की बात हुई। अभी हकीकत में रबीउल के प्यारे महीने में मैं मध्य प्रदेश की जमीन पर 5 दिन के लिए तकरीर करने के लिए गया था। अभी 27 अक्टूबर को इन मुसलमानों में वहां के मामलात को आपकी निगाहों के सामने रखना चाहिए था। जिस इलाके में गया था ना, उस इलाके के लोग बता रहे थे इसलिए कि वहां पर सारे मुरीदीन हुजूर खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू तआला कहते हैं। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलूं, वहां के लोग बता रहे थे कि हुजूर खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन एक मर्तबा इसी इलाके में बहुत बड़े जलसे में शिरकत करने के लिए आए और जैसे ही शिरकत करने के लिए आए, मगरिब की नमाज की अदायगी की, इशा की नमाज की जैसे ही अदायगी ही कर रहे थे कि इतने में अल्लाह की तरफ से बारिश का नुज़ूल हो जाता है। जलसा बड़ा शानदार था, जलसा बड़ा आलीशान था। हकीकत में मुसलमानों बारिश आ गई,
लोग अपना तफरी के माहौल में चले गए, हर कोई अपने आप में डरा सहमा हो गया, इसलिए कि बारिश आ गई, अब तो पूरा का पूरा जलसा खराब हो जाएगा। लोग परेशान हो गए। हुजूर खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू तआला के हुजरे मुबारका में पहुंचे और सरकार खतीब इब्राहिम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो हमारा जलसा खराब हो जाएगा, हमारी महफिल खराब हो जाएगी। हुजूर खतीब इब्राहिम आप ही करम कर दे, सरकार आप ही दुआ कर दे, हो सकता है रब तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाकर यहाँ की बारिश को रोक दे। ए मुसलमानों, वहाँ के लोग बयान कर रहे थे कि हुजूर खतीब इब्राहिम अपने हाथों को उठाकर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीला बनाते हैं, कहते हैं ए रब्बे कायनात, एक वक्त ऐसा था कि सरकार गौसे आजम जामा मस्जिद में तकरीर कर रहे थे तो तूने बारिश को नाज़िल किया था, तो गौसे आजम ने दुआ किया था तो ए मौला तूने बारिश को रोक दिया था। आज गुलाम गौसे आजम बनकर मैं तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहा हूँ, ए रब तबारक व तआला तू बारिश को रोक दे। हकीकत में मुसलमानों, वहाँ के लोगों का बयान है कि हुजूर खतीब इब्राहिम ने जैसे ही अपने हाथों को उठाया, रब तबारक व तआला ने बारिश को रोक दिया। पैगाम क्या मिला कि गौसे आजम की करामतों का अक्स देखना है तो खतीब इब्राहिम की जिंदगी। हकीकत में मुसलमानों, सरकार खतीब इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शरीयत मुतहरा पर किस तरीके से अमल हुआ करता था। ए मुसलमानों, जहाँ पर हुजूर खतीब इब्राहिम दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम देते थे ना, बहुत से लोग कहते हैं कि खतीब इब्राहिम अगर वली होते तो करामत जरूर दिखाते। याद रख मुसलमानों, उनकी सबसे बड़ी करामत ये है कि आज उनके पढ़ाए हुए तलबा पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं, दीन सुन्नियत के काम को अंजाम दे रहे हैं। इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हुजूर खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन पर अल्लाह ने किस तरीके से रहमतों की बरसात अता किया है। अभी हाल ही में 2 से 3 महीना हुआ, जानते हो हरपुर तिवारी एक इलाका है महाराजगंज के अंदर, उस इलाके में जाना हुआ तो एक डॉक्टर है जो डॉक्टर जुमराती निजामी के नाम से जाने जाते हैं। ए मुसलमानों, उनका बयान है, वो बयान करते हैं कि एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत गरीब था, बहुत मिस्कीन था, अगरचे मैं डॉक्टर था तो उनको हफ्ता बीत जाता था, कोई मरीज भी ठीक तरीके से नहीं आता था, मगर सरकार खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन की आमद मेरे घर पर एक मर्तबा हुई। और जैसे ही हुजूर खतीब इब्राहिम मेरे घर को आए तो आने के बाद उसके बाद वहां पर जामा मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए आए थे। आपने देखा होगा कि हमारे इलाके ही नहीं बल्कि दूर दराज तक जब कोई मदरसे की बुनियाद रखता था या मस्जिद की बुनियाद रखता था या किसी घर की बुनियाद रखता था तो डायरेक्ट वो कहीं और नहीं बल्कि सरकार खतीब इब्राहिम की तरफ अपना रुख किया करता था। हकीकत में मुसलमानों, इसलिए कि लोगों को पता था कि हुजूर खतीब इब्राहिम अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, वो वली कामिल है। ए मुसलमानों, खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू तआला महाराजगंज हरपुर तिवारी के इलाके में डॉक्टर जुमराती के घर पर क़याम किया जाता है। जुमा का दिन है, संगे बुनियाद के लिए खतीब इब्राहिम पहुंचे हुए हैं। संगे बुनियाद का काम अंजाम देने के बाद नमाज जुमा की अदायगी के बाद सरकार खतीब इब्राहिम डॉक्टर साहब के घर पर गए और जाने के बाद वहां बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ उनका बयान है कि मेरे यहाँ सिर्फ मुर्गी 2 थी, यानी छोटी छोटी मुर्गी थी। ए मुसलमानों, बहुत ज्यादा 1-2 किलो की नहीं, बताते हैं कि बहुत छोटी मुर्गी थी। उन्हीं दोनों मुर्गियों को अल्लाह के नाम पर ज़बा करके मैंने सोचा कि खतीब इब्राहिम के लिए कुछ खाना बना दूं। और उसके बाद मेरे घर पर सिर्फ 2 किलो चावल था, उस चावल को लिया और उस गोश्त को लिया और उसको बना दिया। और बनाने के बाद सरकार खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू तआला से मिलने के लिए, जानते हो उनकी मुरीदों की तादाद कितनी थी? 60 से 70 लोगों की तादाद थी। अब बताओ मुसलमानों, 2 किलो चावल को अगर किसी को खिलाना हो तो किस तरीके से कोई खिला सकता है? हुजूर खतीब इब्राहिम ने डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब से कहने लगे, डॉक्टर साहब इन तमाम लोगों को आज अपने घर पर दस्तरखान पर खाना खिलाओ। डॉक्टर साहब अपने आप में परेशान हो गए, मगर दिल में इरादा कर लिए कि मेरे पीर मुर्शिद का कहना है, जरूर
ضرور اللہ کرم کرے گا, ضرور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اگر آپ کو اے مسلمانوں کسی کو شبہ ہو تو آپ ہر پور دیواری کے علاقے میں مہاراج گنج کی زمین پر جائے. ابھی بھی ڈاکٹر جمراتی ابھی بھی زندہ ہے, بال سفید ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی وہ باحیات ہے. اس واقعے کی نشاندہی وہ خود کرتے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں سرکار خطیب البراہیم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ کھانا کھلوا دو. اے مسلمانوں وہ ڈر گئے, اپنی بیوی سے کہنے لگے شریک حیات بسم اللہ کی تلاوت کر. بسم اللہ کی تلاوت کرنے کے بعد سرکار خطیب البراہیم کی محبت کو سینے میں رکھ اور اپنے کھانے کو نکالنا شروع کر. حقیقت میں مسلمانوں حضور خطیب البراہیم کی وہ مرید جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ اپنی بیوی سے جب اتنا کہے تو ان کی شریک حیات نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا وہ کون سا مشورہ ہے؟ اس بیوی وہ شریک حیات نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اس بات کو جا کر آپ اپنے پیر و مرشد سے کہہ دیں, ہو سکتا ہے پیر و مرشد آپ پر کرم کر دے. ان کی سمجھ میں آیا, وہ اس میسج کو لے کر یہ پیغام کو لے کر جانتے ہو حضور خطیب البراہیم کی بارگاہ میں آئے اور اپنے آپ میں تپی کچلی زبان میں عرض کرنے لگے سرکار میرے گھر پر دو چھوٹی چھوٹی مرغیاں تھی, انہی مرغیوں کو میں ذبح کر کے اسی کے گوشت کو اسی کے سالن کو تیار کیا ہوں. 2 کلو چاول تھا اسی کو تیار کر کے میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا. سرکار خطیب البراہیم نے کہا کہ تم اس جو جس میں تم کھانا بنائے ہو اس کے اوپر سے تم اس برتن پر ایک کپڑا باندھ دو اور باندھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہو کہ کپڑا ہٹا کر دیکھے گی نہیں اور نکالنا شروع کر دے بسم اللہ پڑھ کر. حقیقت میں مسلمانوں ڈاکٹر جمراتی کا بیان ہے, اس کے بعد میری بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد کھانا نکالتے گئے, لوگ پیٹ بھر بھر کے سیراب ہوتے گئے. حقیقت میں کھانا گھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. جب سارے کے سارے لوگ سیراب ہو گئے تو اس ہتھیلی کو اس برتن کو سرکار خطیب البراہیم کی بارگاہ میں لایا گیا. حضور خطیب البراہیم نے اپنے ہاتھوں سے جب اس کپڑے کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں 5 سے 7 لوگوں کا کھانا موجود ہے. اے مسلمانوں یہ سرکار خطیب البراہیم کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. خطیب البراہیم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا, اللہ کی برکتوں کا نزول تھا. اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کہ آج پوروانچل کی زمین پر جتنے خطبہ اور شورا سب سے زیادہ مشہور ہے وہ خطیب البراہیم صوفی نظام الدین کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جو خطیب البراہیم سے مل جاتا ہے اللہ اس کے بھی مقام و مرتبے کو اونچا کرے. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے کہ باہر کے بھی خطبہ آئے ہوئے ہیں. میں آدھا گھنٹہ کے لیے آیا تھا اور آدھے گھنٹے ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نہیں تو کرامت تو بہت ہے بیان کرنے کے لیے, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے درمیان کبھی حاضر آؤں گا تو کرامت پر گفتگو کر سکتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے. میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کی حاضری کو قبول فرمائے. حافظ محمد سہیل سلمہ ان کے ساتھیوں نے جس طریقے سے محنت و مشقت کیا اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرمائے, ان پر رحمتوں کی برسات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.